Hello, hi everyone. Hope all you are good and doing well. So, beta, in the next class we were discussing about our phylum Annelida. Yes. So, in this session we are going to discuss about our phylum, which is your Arthropoda. Okay. Since beta, its name is Arthropoda, every phylum has their meaning कि like उनके words Arthropoda या हम किसी को Annelida बोल रहे हैं तो why we are saying so, कुछ तो मीनिंग है ना. मैंने हर फाइलम में तुम लोगों को मीनिंग्स भी बताए हैं. ओके, सो जस्ट लेट्स डिस्कस विद दिस आर्थ्रोपोडा. बेटा आर्थ्रो वर्ड यूज्ड फॉर द जॉइंटेड. आर्थ्रो वर्ड बेटा यूज्ड फॉर द जॉइंटेड. आर्थ्रो वर्ड्स यूज्ड फॉर द जॉइंट्स एंड बेटा पोडा वर्ड यूज्ड फॉर द लेग्स. बेटा पोडा वर्ड यूज फॉर दी लेग्स. सो आर्थ्रोपोडा मीन्स इस फाइलम के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, वॉट एवर द ऑर्गेनिज्म दैट कम्स अंडर दिस फाइलम्स, दे हैविंग अ जॉइंटेड लेग्स. दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट सो आर्थ्रोपोडा. And one more thing beta, it is the largest phylum among all of the phylum. Whatever the phylum we have, that is your largest phylum. It cover beta 2/3 of the entire phylum. Yes, you heard me right. It covers beta 2/3 of the entire phylum. Okay beta, अगर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर तुम्हारे प्यारे प्यारे इंसेक्ट्स हैं तो देखो उनकी जॉइंटेड लेग्स है ना, दे हैव अ जॉइंटेड लेग्स, तभी तो इन्हें आर्थ्रोपोडा बोल रहे हैं. एंड वन मोर थिंग बेटा, सबसे बड़ी फाइलम है तुम्हारी, ये इतनी ज़्यादा क्यों है, लाइक इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई क्यों कर रहा है. तो बेटा जो इनकी मेन कंपोजिशन है ना, विच इज़ हाइड इन देयर एक्सोस्केलेटन. दे हैव अ एक्सोस्केलेटन बेटा, दे हैव अ एक्सोस्केलेटन. अब नाउ यू आर गोइंग टू से दैट मैम हमारे पास भी तो एक्सोस्केलेटन है. येस, वी ऑल्सो हैव एक्सोस्केलेटन, बट बेटा जो इनका एक्सोस्केलेटन है ना, दे हैव अ इनका जो काइटिन होता है, इनके एक्सोस्केलेटन में क्या होता है, काइटिन होता है. एंड बेटा काइटिन तुमने पढ़ा होगा क्या होता है, ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड की एक लेयर होती है ना जिसमें नैग एंड दी नैम होता है. काइटिन तुम्हारी फंजाई में भी होता है. तो बेटा इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है विच इज़ मेड अप ऑफ दी काइटिन. तो काइटिन क्या करते हैं, वाटर को बेटा रिटेन करके रखता है, उसे लॉस्ट नहीं होता. सो दिस इज द रीज़न दे कैन बी फाउंड इन एवरीवेयर. ओके, एंड दैट इज द रीज़न दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम अमंग ऑल ऑफ द फाइलम बिकॉज देयर एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ द chitin layer. Okay, that's the thing. And beta one more thing, if their body is divided, if we want to divide their body into the different parts, so their body usually divided into the head, thorax and the abdomen. Beta their body usually divided into the head, thorax and the abdomen. Okay, so what we discussed beta, this is the largest phylum among all of the phylum. Why? Because their exoskeleton is made up of the chitin. Okay, that is the reason they can be found in everywhere beta. If you want to divide their body, so their body usually divided into the head, thorax and the abdomen. Okay, and beta if you see here, so they have a segmentation that is present outside their body. So that type of a segmentation is known as the metameric segmentation. Okay, what type of a segmentation they have beta, they having a metameric segmentation. Is that clear? Now beta habit and habitat, these animals inhabit a variety of habitats like the oceans, waters, land and the air. Almost everywhere they can found. Okay, level of organization, organ system level of organization they have beta, germ layer, triploblastic 3 germ layers they have, coelomate, eucoelomate, particularly they are the schizocoelomate. Body plan, it is tube within tube, they are the protostomes, their mouth from the first during the time of the blastopore stage. Symmetry is bilateral. Segmentation, as I told you, you can see here that their body is divided into certain segments. That's why we are saying that they having a metameric segmentation. Notochord is absent because notochord is the characteristic features of your chordates only. Okay, let's just discuss about their physiology. Digestion beta, their digestive system is complete and they having what, extracellular digestion. As I told you in the initial of the chapter beta, for the very first time we have seen a respiratory structure in which phylum,
दैट इज़ योर आर्थ्रोपोडा। बेटा पहली बार हमने रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो वेल डेवलप्ड किसी फाइलम के अंदर देखी थी ना, सो डेट इज़ योर आर्थ्रोपोडा। ओके, respiration beta, they have a respiratory structure. See how many respiratory structures they are. They have gills, they have book gills, book lungs, and they have ट्रैकियल सिस्टम। बेटा बुक गिल्स बुक लंग्स मीन्स जब आप इनको हम डाइसेक्शन करते हैं और जो हम इनकी गिल्स और लंग्स को ऑब्जर्व करते हैं ना, दे लुक लाइक अ बुक, दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर दे नेम्ड बुक गिल्स एंड द बुक लंग्स। ओके, सो गिल्स आर सीन इन द प्रॉन्स, book gills, limelis, which is your king crab. Beta king crab is also known as the living fossil. Now what is living fossil? Yes or no? Curiosity, what is living fossil? So beta living fossil are those organisms who do not show any type of a evolution. वो जैसे आए थे ना अर्थ पे अभी भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, मस्त लेजी दे आर, जोक्स अपार्ट, उन्होंने अभी तक कोई इवोल्यूशन शो नहीं करा है उनके अंदर। और ड्यूरिंग द जैसे वो अर्थ पे प्रिमिटिव आए थे अब तब से लेके अब तक वो ऐसे ही हैं, उन्होंने कोई भी इवोल्यूशन शो नहीं करा है। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द ह्यूमंस ना, सी बेटा पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो एप्स थे, देन वो होमोपैथिकस एंड देन सो on like we are now a homo sapiens, so we show the evolution, that's why तो बेटा हम तो नहीं हो गए लिविंग फॉसिल। सो बेटा जो इन्होंने एवोल्यूशन शो नहीं करा था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर नोन एज द लिविंग फॉसिल। बुक लंग सीन इन योर स्कॉर्पियंस एंड द स्पाइडर्स, ट्रैकियल सिस्टम बेटा they are seen in the insect. Okay beta, when we will discuss about the cockroach and all na, so on that particular chapter I'll going to tell you about the insect about the tracheal system. Okay, वो बेटा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के अराउंड ना ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया देन फर्दर ओपन होता है ट्रैकियोल्स में, एंड फिर बेटा ट्रैकियोल्स ना डायरेक्टली इंसर्टेड होते हैं टिश्यू के अंदर, वहाँ से गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं। ओके, सर्कुलेशन बेटा, देयर सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन बिकॉज यू आर माई स्मार्टेस्ट किड एंड आई होप कि तुम्हें याद होगा एंड थे ए फॉर आर्थ्रोपोडा। Excretion beta, excretory structure, they have different type of a excretory structure which is your green glands. Green glands is also known as the beta antennary gland. बेटा ये प्रॉन्स में देखने के लिए मिलते हैं ग्रीन ग्लैंड्स और दी एंटेनरी ग्लैंड्स। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें ग्रीन ग्लैंड्स क्यों बोल रहे हैं और एंटेनरी ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं? बेटा जो ये ग्लैंड्स हैं ना एक्सक्रीटरी के, ये प्रॉन्स के एंटीने में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई दे कॉल्ड एंटेनरी ग्लैंड। एंड बेटा दे आर अ ग्रीन कलर एंड इनका ग्रीन कलर होता है, दैट्स वाई दे नेम एज ग्रीन ग्लैंड्स और दी एंटेनरी ग्लैंड। And where they are found beta? Prawns, which is your crustaceans. Beta, since these prawns are living in the water, so they are the ammonotelic, means their excretory waste is ammonia. What is the excretory waste of the prawns? Excretory waste of prawn is beta ammonia. That's why we are saying that it is your ammonotelic. Okay, is that clear? Malphizian tubules you can see in the insects, and in your course you having a cockroach also, cockroach having a Malphizian tubules, and in the cockroach beta they having a 100 to 150 in number Malphizian tubules and they are yellow in color. Okay, and what is the waste of this insect beta? Urea, that's why they known as the uricotelic. Coxal glands present in the scorpions and the spider, their excretory waste is uric acid, that's why they known as the uricotelic. ओके बेटा, अगर हम तीनों में बात करें कि कौन सा एक्सक्रीटरी वेस्ट बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, सो बेटा अमोनिया इज़ अ वेरी पॉइजनस, दैट्स वाई फॉर देयर डिसॉल्वेशन दीज ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, दैट्स वाई बेटा ये मराइन वाटर, फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, इन्हें जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें डिजॉल्व करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, तो कहाँ जाएंगे? पानी में जाएंगे, जाओ पानी में, इतना सारा पानी है, डिजॉल्व करो, ठीक है, अमोनिया होता है। यूरिया बेटा इसके कंपैरिजन में वो फिर भी कम टॉक्सिक होता है, और यूरिक एसिड तो बेटा बहुत ही लीस्ट टॉक्सिक होता है। सबसे ज़्यादा अगर टॉक्सिसिटी की बात करें ना, कौन सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है? टॉक्सिक है बहुत, अमोनिया, एंड देन योर यूरिया एंड यूरिक एसिड बेटा इट इज़ लीस्ट टॉक्सिक। Next, the nervous system, they having a double ventral solid nerve cord, and nerve they have very simple sensory structure. Beta they having a eye for their sensory structure, and they having a two type of eye. One is the simple eye, and another they having a beta compound eye. Okay, two type of eye they have, simple eye and the
compound eye, and for their balancing structure they having a statocyst. Statocyst is nothing, you know that it is a balancing structure which can help the balancing in the body. Okay, reproduction, unisexual, bisexual, both they are sexual reproduction. And parthenogenesis you can see in this phylum. Now what is the parthenogenesis beta? In which without fertilization zygote will be formed. Yes, parthenogenesis is that process beta in which you can see without fertilization the zygote will be formed. Okay, fertilization usually internal, they are oviparous, means they are beta egg laying, एग ले करते हैं, ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, इसलिए इन्हें हम ओवीपेरस बोलते हैं. वीवीपेरस कौन होते हैं बेटा? जो गिव बर्थ टू दी यंग वंस, वो आपके वीवीपेरस होते हैं. डेवलपमेंट बेटा, डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड द इनडायरेक्ट, बोथ टाइप ऑफ अ डेवलपमेंट. डायरेक्ट यू नो दैट जो सीधा बर्थ देते हैं यंग वंस को, उनके डायरेक्ट डेवलपमेंट है. इनडायरेक्ट कौन होते हैं बेटा? जो लार्वल स्टेजेस को क्रॉस करते हैं. और बेटा जो लार्वल स्टेजेस को क्रॉस करते हैं ना, उसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. ये एक पूरा प्रोसेस होता है ना, उसको हम क्या नाम दे देते हैं बेटा? मेटामॉर्फोसिस. ओके बेटा देखो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ना हमारे पास 3 टाइप्स की है. ओके, दिस इज क्वाइट एक्स्ट्रा. इफ यू वांट टू टेक दिस ज्ञान सो यू कैन टेक इट. बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ अ डेवलपमेंट वी हैव. फर्स्ट इज योर अ मेटाबोलस. बेटा सी, देयर मीनिंग इज हाइड इन देयर नेम ओनली. अ मेटाबोलस, they are a metabolus. A means beta absence and the metabolus refers to beta metamorphosis. Metamorphosis is what? A gradual changes in the organism's body. Is that clear? Absence of the metamorphosis means बेटा जब एग हैच करेगा, जो लार्वा वाली स्टेज आएगी ना बेटा, वो कोई भी मेटामॉर्फिस शो नहीं करेगा. वो जैसा एग हैच होने के बाद है वो वैसा ही रहेगा. हियर इज एब्सेंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेयर यू सी दिस इन द लेपिस्मा विच इज़ द सिल्वर फिश. ओके, second beta you have parametabolous. Now what is parametabolous? What happen in this beta? We have seen the incomplete metamorphosis. What you see beta? Incomplete metamorphosis. What happened beta? Egg hatch into the nymph stage and nymph stage converted into the adult. Now what is the difference between their nymph stage and the adult stage? Beta both having a same type of a lifespan, both having a same type of a lifespan, but what is the difference between these? The difference between in their gonads and there are some morphological structure and they are in some morphology. See beta, just take an example of your cockroach. Okay, because it is given in your syllabus as well as. बेटा कॉकरोच ले करता है एग को, ठीक है. कॉकरोच ने एग दिए, एग हैच हुए बेटा, वो निम्फ में गए, ठीक है. निम्फ बाद में कन्वर्ट होगा तुम्हारे एडल्ट में. बेटा अब द डिफरेंस कहाँ आता है? जो ये निम्फ और एडल्ट होते हैं दोनों का ना सेम टाइप का लाइफ स्पेन होता है. मतलब अगर तुम्हारा कॉकरोच एडल्ट वाला ओमनीवोरस है तो निम्फ भी ओमनीवोरस होगा. अगर वो नॉक्टर्नल है एडल्ट तो निम्फ भी नॉक्टर्नल होगा. नॉक्टर्नल मीन्स बेटा जो रात में एक्टिव होते हैं, दोज हु एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट. मोस्ट ऑफ देम यू आर ऑल्सो अ नॉक्टर्नल, जो रात में जगराते रहते हैं. ओके, सो बेटा निम्फ और एडल्ट. अब नाउ बेटा डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है कि जो निम्फ होता है उसके पास गोनाड्स नहीं होते, बट एडल्ट्स हैव अ गोनाड्स. जो निम्फ होगा उसके पास विंग पैड्स नहीं होंगे, बट एडल्ट के पास बेटा फुल्ली डेवलप्ड विंग्स होंगे. ओके, एंड बेटा जब जो निम्फ से एडल्ट वाली स्टेज होती है ना, इट टेक्स 1 ईयर. कितने साल ले लेता है बेटा? 1 ईयर लेता है. और जो तुम्हारा निम्फ और एडल्ट से जब ये कन्वर्ट करता है, दे शो द मॉल्टिंग अबाउट द 13 टाइम्स. सी 13 टाइम्स, 13 टाइम्स दे शो द मॉल्टिंग. ओके, सो दैट टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज द इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट ही नहीं है बेटा. डिफरेंस देखो कितने हैं. एंड 1 साल का टाइम ले रहे हैं, 13 बार मोल्डिंग शो कर रहे हैं, जब कहीं जाके एडल्ट होंगे. कुछ तो बेचारे ऐसे ही शहीद हो जाते हैं पेस्टिसाइड में, मर गए ऐसी, है ना. तो बहुत कम ही खुशनुमा लोग ही पहुँच पाते हैं एडल्ट में. नाउ बेटा होलो मेटाबोलस. होलो मीन्स बेटा कंप्लीट. They show the beta complete metamorphosis, and we have a very beautiful example which is your butterfly. Egg will hatch into the beta larva, larva will hatch into the pupa,
and pupa to it converted into the beta adult butterfly. all of the stages are different from the each other and बेटा सबका mode of lifespan भी अलग होगा, सबका mode of reproductive structures everything are different. so ये complete metamorphosis show करते हैं, इसलिए they are hollow. Ametabolous, absence of the metamorphosis. Pora, incomplete. Hollow, complete metamorphosis. Just beta, just remember the example, okay, because in this chapter beta examples are very important. Beta, like we have a lots of variety of insects, okay, not all insects are your bad because some are your beneficial also, क्योंकि कुछ insects ऐसे हैं जिनको हम human welfare में use करते हैं. like we have a honey bee से हम wax लेते हैं, honey extract करते हैं, तो it is good for us ना. but हाँ, अगर तुमसे छेड़ोगे तो तुम्हें डंक भी मारेगी. economical important insect which first is your apex, that is your honey bee. what we are getting from the honey bee beta, honey and the bee wax, okay. next we have a bombyx which is your silkworm and their product is silk. लैसीफर बेटा इट इज़ अ लैक इंसेक्ट. बेटा लैसीफर ये लैक इंसेक्ट होता है, ये लैक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है अपनी बॉडी से एंड ये लैक प्रोडक्ट जो होता है ना बहुत ही शाइनी होता है. जो तुमने बैंगल्स पे शाइनी सा सब्सटेंस देखा होगा ना, वो इसी लैसीफर इंसेक्ट से लेते हैं और ये बैंगल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ओके. देयर प्रोडक्ट इज लैक एंड यूज्ड इन दी बैंगल इंडस्ट्री, ओके. नाउ बेटा वी हैव वेक्टर्स टू. यस, नॉट ऑल आर दी गुड. everyone have exception, okay. like one we have a beta female Anopheles mosquito which is the carrier for the malaria. yes or no? Anopheles mosquito carry the plasmodium inside their saliva and बेटा उससे क्या डिसीज़ कॉज होती है, मलेरिया. एंड ऑल्सो वी हैव अ वन डिसीज़ विच इज़ योर एलिफेंटियासिस. उसकी जो कैरियर है वो कौन है, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो. यस और नो? वो क्या करती है, जो तुम्हारा फाइलेरियल वर्म होता है उसके लार्वा को कैरी करती है एंड इट्स कॉल्ड बेटा फिचुरासिस एंड इज ऑल्सो नोन एज द फाइलेरासिस. वाई फाइलेरासिस बेटा, क्योंकि जो फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो होती है वो क्या कैरी कर रही है, वर्म कैरी कर रही है. कौन सा वर्म, फाइलेरियल वर्म. सो उसके बेसिस पे इसका नाम है फाइलेरियासिस, ओके. नेक्स्ट वी हैव अ बेटा फीमेल एडिस मॉस्किटो विच कॉजेज दी डेंगू, ओके. नेक्स्ट वी हैव अ बेटा ग्रेगेरियस पेस्ट. व्हाट इज द ग्रेगेरियस पेस्ट बेटा, दोज टाइप ऑफ इंसेक्ट विच कैन लिव इन दी ग्रुप. सिंस बेटा ये ग्रुप में रहते हैं बट ये ग्रुप में रहने के बाद भी एक दूसरे की हेल्प नहीं करते. लाइक आंट्स लिव इन द ग्रुप बट दे आर गोइंग टू हेल्प टू ईच अदर. यस और नो? बट सिंस बेटा ये ग्रुप में रहेंगे और किसी की हेल्प नहीं करेंगे एंड दैट इज योर लोकस्टा विच इज कॉमन नेम इज लोकस्ट. One you have a living fossil and you know that what is living fossil, those जिन्होंने कोई भी evolution show नहीं करी है. And the example is your Limulus and the king crab, okay. That's it for the today बेटा. Just to revise this phylum, this is very small phylum. इसमें जो important बात है बेटा वो इसके examples हैं, like कौन से vectors है तुम्हारे and कौन से तुम्हारे insect हैं which is useful for the human welfare and कौन से gregarious pest होते हैं and कौन किसको हम living fossils बोलते हैं and किसमें किस तरह की respiratory structure है. Like I told you they having a book gills, book lungs and they having a grey and excretory structure में green glands, centenary glands, just and coxal glands. ये सब याद करना. and one more thing बेटा, their exoskeleton is made up of the chitin, that's why they are present in the very large amount, okay. because बेटा chitin की property ही होती है कि वो water को loss नहीं होने देता, इसलिए बेटा ये extreme condition में भी survive कर सकते हैं. जैसे देखो हर जगह मिल रहे हैं, land, air, water everywhere, okay. that's it for the today. thank you so much.